Good afternoon, students. I am Dr. Mamta. Today we are going to discuss about the chapter first of class 7th science, nutrition in plants. Let us discuss about the chapter. In class 6th, you have learnt about that food is essential for all living organisms. That food is the basic necessity for all living organisms. And you also know that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of food. हम जानते हैं कि components of food कौन से हैं. Components of food है carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. And these components of food are very important for our body. And these are known as nutrients. आप देखिए आपके चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स वर्ड की हम बात कर रहे हैं. तो हम ये थोड़ा सा लिंक आपको लग रहा होगा. तो all living organisms require food. I told you earlier also that all living organisms they require food for their livelihood. Now plants can make their food themselves, but animals including humans are not able to do so. Plants are able to prepare their own food, but humans and animals are not able to do so. So what they do? They get it from plants or animals or they eat plants. So they get it from plants or animals that eat plants. So can I say that humans and animals are dependent on the plants for their food? I can say students. कह सकती हूँ ये बात? Yes, I can say. There is a one question in the book that Buju wants to know how plants prepare their own food. अब मैंने आपको कहा कि plants prepare their own food and animals are not able to prepare their own. They are dependent on plants for their food. So the question comes, how plants prepare their own food? Let us discuss. Mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that prepare their food by themselves by using raw materials. So plants are the only organisms who prepare their own food themselves by using raw materials like carbon dioxide, water and minerals. These raw materials are present in the environment. So question आता है कि मैम प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. आप कह रहे हो कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. फिर आप ये कह रहे हो कि ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स. मतलब आसपास ही प्रेजेंट है हमारे. यस, दे आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स. दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी बिल्डअप करने के लिए और हमारी जो बॉडी के डैमेज्ड पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए. तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ अभी तक आपको, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए जो फूड है, आपका चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट इज लिटिल बिट अबाउट द फूड. पहले हम फूड को डिस्कस कर लें. फूड क्या है और फूड कौन बनाता है, कहाँ से आता है. हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फूड कहाँ से आता है. 7th में भी पढ़ा हुआ है. हमने थोड़ा सा इसकी ब्रीफ पढ़ा कि फूड कहाँ से आता है. फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम द एनिमल्स. बट कहाँ डिफरेंस आया कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और जो एनिमल्स है दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. आई होप that this is clear to you. Should I proceed? Okay. Nutrition. Nutrition word. मैंने ऊपर एक word use किया था nutrients. Nutrients and nutrition आपस में मिलते हैं. तो nutrients और nutrition बहुत मिलते हैं आपस में हैं. तो nutrition क्या होता है? It is the mode of taking food. It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. आप खाना खाते, the process of taking food by an organism. खाना खाते और आपकी बॉडी में वो यूटिलाइज होता है. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. और ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ग्रो. क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं. ये न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे? ग्रो करने में हेल्प करेंगे, हमारी बॉडी बिल्डअप में हेल्प करेंगे एंड आल्सो इन एंड
आल्सो इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें ये सब हमारी हेल्प करते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे चलें। कहते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। देखिए देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब बात आई थी तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और द वेज ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और द वेज ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो वेज है न्यूट्रिशन के, दो मोड्स है न्यूट्रिशन के। फर्स्ट मोड इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक्स फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन प्लांट्स का लीजिए। ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। अब जो खाना बनता है प्लांट्स में हम आगे डिस्कस करेंगे वो कौन सी फॉर्म में होता है और वो कौन सी फॉर्म में रॉ मटेरियल लेते हैं और कैसे कैसे सब चलता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतनी बात कीजिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make food from simple inorganic substances. Mode of nutrition in which organisms make food from simple substances is called autotrophic. Self nutrition. तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब हम एनिमल्स की बात करें। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेडीमेड फूड खाते हैं विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। सो दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉफ्स, इसलिए उनको हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हिट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो आपको ना एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे एग्जाम में। मॉडल अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी, डिफाइन न्यूट्रिशन, डिस्कस इन ब्रीफ द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन and explain the two types of nutrition with example. 3 marks question can be asked from this part. तो आपको लर्न करना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स। तो याद रखना बात स्टूडेंट्स कि हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है गाइस कि आप दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो। You are dependent on other. Heteros का मतलब होता है on others. You are dependent on others for the food. That is heterotrophic nutrition. Again question comes. Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहली पूछ रही है कि हमारी बॉडी खाना क्यों नहीं बनाती वैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स में जैसे प्लांट्स बना लेते हैं। अब देखिए रीज़न क्या है कि प्लांट्स में जो फूड बनता है वो ऑर्गेनिक फूड बनता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स में फूड बनता है वो ऑर्गेनिक फूड बनता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो प्लांट है ना वो एज अपने जो प्लांट पार्ट्स हैं उनसे फूड कैसे बनाता है? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट इन दैम, दे अब्सॉर्ब सनलाइट। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। पर पहली का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं बनाती? हमारी बॉडी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर द फूड। वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एज वेल एज ऑन द एनिमल्स फॉर द फूड। सो दिस इज द डिफरेंस। अगेन क्वेश्चन कम्स, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। फूड फैक्ट्रीज कहाँ है प्लांट्स की? प्लांट के कौन से पार्ट में खाना बनता है? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और इन सर्टेन पार्ट्स। क्या फूड सभी पार्ट्स में बनता है प्लांट के या सर्टेन पार्ट्स में बनता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आप कहोगे मैम आप कह रहे हो कि जो प्लांट्स हैं दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से अगर खाना बनता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो सराउंडिंग्स में है, तो वो सराउंडिंग से लीफ में या उस पार्ट में जहाँ पे फूड बनना है वो कैसे पहुंचता होगा? तो हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट द फूड टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट? तो वो ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये पहेली और बुझू के वन के क्वेश्चंस हैं, तो इनके हम आंसर्स की बात करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फोटोसिंथेसिस। गाइस फोटोसिंथेसिस मींस
Photo means light and synthesis means making. The process of making food in the presence of sunlight is called photosynthesis. This is the food making process in plants. So guys, ऐसा है कि अभी आप ये फर्स्ट पार्ट सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको लिखवाऊंगी। आई विल डिक्टेट दोज क्वेश्चंस टू यू। तो आपने उनके बड़े स्पेसिफिक से आंसर्स लिखने हैं, बिकॉज साइंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, साइंस रीजनिंग मांगती है, साइंस फैक्ट्स मांगता है, तो इसमें आपको इतनी डिटेल उसी चीज की देनी होती है। एक्सप्लेनेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, उसी चीज को एक्सप्लेन करोगे जो फैक्टफुल है। आप अपनी तरफ से हिस्ट्री वाली स्टोरीज नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ना साइंस में रीजनिंग बेस्ड साइंस होती है। तो अभी फर्स्ट पार्ट आप डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको लर्न कीजिए और क्रैम नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड अगर ये इन्फॉर्मेटिव है वीडियो, आपके लिए यूजफुल है और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बेनिफिट हुआ मेरे वीडियो से, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर ममता। थैंक यू।